and that one thing today is understanding calories. Those who are following us on Facebook, okay, would have realized that we have been putting posts and we have been putting a lot of information on various types of calories. तो आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो बात दो किस्म की है. एक है calories and their types. Did you know that there is something called empty calories? Hi Aarti, hi everyone. आप लोगों को किसी को पता है कि calories की भी types होती है? How many of you know what are empty calories? Just say yes. Anyone? You all know empty calories? मुझे बस बोलो yes, I know empty calories. Anyone? Hi. Anyone who thinks that they know what is negative calories? किसी को negative calories के बारे में पता है? Yeah? No? Hi Samta. You know what are negative calories? Yeah? Anyone? Aarti knows because Aarti is a client with us. So I have taught you what are negative calories. है ना? पूरी दुनिया आज और कल सिर्फ कैलोरीज के बारे में बात करती है. What is the amount of calories that you are having in your diet? What is the amount of calories that you should be having in your diet? And what are the calories that you should consume if you want to lose weight? है कि नहीं? Right? तो हम आज बात करते हैं सबसे पहले तो कैलोरीज की. Right? No. See, there are many people who don't know what are empty calories. So today, सबसे पहले let me teach you or let me tell you rather what are empty calories. You know what? Let me tell you one very example that will connect. Suppose if today I have one apple in front of me, okay? Left side पे apple रख दिया है और right side पे मैंने एक bottle coke रखी है. All right. So just imagine the calories in the apple are say about 100 and the calories in my coke also are 100. ठीक है ना? अब आप मुझे बताओ, doesn't the calorie here matter? जो कोक की कैलोरीज है ना, वो प्लेन शुगर से आ रही है. It is a junk calorie, a complete bad calorie. That is what is an empty calorie. जो कैलोरी, hi Lena, how are you? Hi Richa, hi everyone. Did you all understand what is an empty calorie? ठीक है ना? एक empty calorie वो है जिसमें शुगर के अलावा और कुछ नहीं है. ठीक है ना? Unfortunately, साबूदाना also comes in that, you know. And आपकी शुगर जो है ना, the white sugar that you use, refined white sugar, वो भी उसमें आ जाता है. All right. So I hope everyone has understood what are empty calories. Empty calories are those calories that have no other nutrient. अगर आप apple खा रहे हो, so along with an apple, है ना, the calories तो are coming. You getting vitamins, है ना? We are all getting our vitamins because of which the skin looks good. We look good, isn't it? We are getting a lot of minerals from apple. है कि नहीं? Understood? So empty calories जो है, they are a brilliant example of weight gain. ठीक है? हमको ये याद रखना है कि हमको empty calories दूर रखनी है. Right? So this is what calories does. ठीक है ना? मैं आपको 1600 कैलोरीज का वेट लॉस डाइट दे दूं और उसमें अगर मैं कोक ऐड कर लूं, उसमें अगर मैं शुगर ऐड कर लूं, उसमें अगर मैं सेगो ऐड कर लूं, साबूदाना, that will have no meaning, isn't it? So whenever you ask, अभी आप जब भी किसी से पूछोगे ना, कैलोरी कितना खाती है, कैलोरी कितना खाती है, इसमें कैलोरी कितना है, नो. आप एक स्टेप आगे जाओ और आप ये समझो एंड यू अंडरस्टैंड दैट कि इसमें न्यूट्रिशन कितना है. ठीक है ना? यही तो हम सिखाते हैं बैलेंस न्यूट्रिशन में कि आपको कैलोरी नहीं देखनी है. यू नो, व्हेनेवर वी आर गिविंग अ डाइट चार्ट, इट इज विदाउट कैलोरीज. हम सिर्फ रेसिपीज जो है वेबसाइट पे उसकी कैलोरी समझाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उसकी प्रोटीन कंटेंट, उसका फैट कंटेंट, उसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, ये आपको जानना है. अंडरस्टूड एवरीवन? दूसरी किस्म की कैलोरी है नेगेटिव कैलोरीज. पता है, नेगेटिव कैलोरीज वर्ड ही इतना नेगेटिव है लेकिन काम कमाल का करती है. इट डज अ वंडरफुल जॉब ऑफ ओनली वन थिंग एंड दैट वंडरफुल जॉब इज नेगेट द फैट. ओके, अब नेगेट द फैट का क्या मतलब हो गया? मतलब वो हमारे फैट लॉस में बहुत काम आता है. All right, so whenever you are talking about a negative calorie, understand it is like one bowl of cabbage. अगर आज आपने एक bowl of cabbage खाया है सैलेड में, शक्कर वक्कर न डाल के, सिर्फ नींबू और पेपर पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के, तो आपने खाया 40 कैलोरी.
लेकिन उसको बर्न करने के लिए द बॉडी इज पुटिंग एन एफर्ट ना, डाइजेशन होता रहता है, तो उसको बर्न करने के लिए आपको क्या करना होगा पता है? यू विल हैव टू डू नथिंग. वो 40 कैलोरीज बर्न होने के लिए बॉडी यूजेस 50 कैलोरीज, है ना. तो नेट रिजल्ट क्या आया? आपका वेट लॉस, आपकी 10 कैलोरीज माइनस हो गई. जस्ट इमेजिन 40 खा रहे हो और 50 खर्च रहे हो. सो ओवरऑल फैट लॉस बहुत अच्छा होता है. नेगेटिव कैलोरीज वाले खाने कौन से हैं? यू नो, नेगेटिव कैलोरीज आर मोस्टली सीन इन रॉ, कच्चा. ओके, कच्चा वेजिटेबल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कैबेज, जैसे मैंने आपको बताया ब्रोकली, कॉलीफ्लावर. अब यार ये बताओ मुझे, अगर आप कॉलीफ्लावर ले रहे हो एंड इफ यू मेक कॉलीफ्लावर तंदूरी विथ ऑल द क्रीम एंड विथ ऑल द मसालाज एंड चटपट चटपट करके आप उसको तंदूर करोगे, तो वो एम्प्टी कैलोरी नहीं हुआ. कॉलीफ्लावर अपने प्योरेस्ट फॉर्म में एक एम्प्टी कैलोरी हो रहा है. ठीक है ना. तो जब भी आप एक वेट लॉस या फिर आप किसी वजह से कैलोरी काटने की सोच रहे हो, यू हैव टू ओनली अंडरस्टैंड वन थिंग. आपको हर फूड का कैलोरी काउंट नहीं देखना. आपको देखना है कि ये फूड में फैट कितना है. आपको ये देखना है कि ये फूड में कार्बोहाइड्रेट्स कितना है. फैट का क्या फंक्शन है? आपको लो फैट खाना है, राइट. फैट में भी आपको मिलेगा कि वहां ट्रांस फैट्स है, वहां सैचुरेटेड फैट है और वहां अनसैचुरेटेड फैट्स है. अंडरस्टूड. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आप लो फैट वाला, लो प्रिजर्वेटिव वाला, डिसेंट फाइबर, डिसेंट कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी में थोड़ा कम ही खाओ. अगर फैट कम है, अगर शुगर कम है, तो ऑब्वियसली योर कैलोरीज विल बिकम अ गुड सोर्स. ठीक है ना. अब चीज ले ले, जैसे ये बरखा इज आस्किंग मी क्यूकम्बर क्वेश्चन मार्क. जी हाँ, क्यूकम्बर एक नेगेटिव कैलोरी फूड है, लेकिन अगर आप क्यूकम्बर रायता खा रहे हो तो आपने जो दही की कैलोरीज ली है दैट इज गोइंग टू कम इन द वे. ऑल राइट. If you all have understood the concept of negative calorie and understood the concept of empty calorie, है ना, आप मुझे बताओ कि यार ठीक है कि नहीं. जयदीप इज सेइंग आई बर्न 600 कैलोरीज डेली. जयदीप, आप बर्न कितना भी कर लो, लेकिन आप खा क्या रहे हो और आप कैसे खा रहे हो, दैट मैटर्स. ठीक है ना. हाँ, बर्न तो आप कर लो. यस, यू कैन बर्न n नंबर ऑफ कैलोरीज, बट अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ कैलोरी इज व्हेन यू आर ईटिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना. अब जैसे ले लेते हैं एग. एक एग की कैलोरीज फुल ऑफ न्यूट्रिशन है. एग को मैं ब्रेक करती हूँ एग व्हाइट में और एग योक में. इन एग व्हाइट यू विल गेट 3 grams प्रोटीन, यू विल गेट 17 कैलोरीज एंड यू विल गेट 0 gram फैट. एग योक जो है उसमें आपको मिलेंगे 60 कैलोरीज, अबाउट 4 to 5 to 6 grams ऑफ फैट, डिपेंडिंग ऑन ये अंडा किसका है, और बहुत सारा न्यूट्रिशन. तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको एग योक थोड़ा कम करना पड़ेगा, है ना, और एग व्हाइट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको फैट की कैलोरीज कम, राइट. दैट इज व्हाट यू शुड डिसाइड. लीना, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी. आप पूछ रहे हो मुझे हाउ डू वी काउंट कैलोरीज. मैं कह रही हूं आप कैलोरी काउंट मत करो. आप सिर्फ ये सोचो कि ये कैलोरी आई कहां से. अगर मैं आपको चीज बताऊं, है ना, लाइक चीज, वी ऑल लव चीज, राइट. So cheese is a reason for weight gain despite it being good, because cheese में खूब सारा फैट है. ओके, सो एक 20 ग्राम जो आपका चीज क्यूब होता Facebook, everyone is hearing me. Is everyone able to hear me on Facebook? I had lost connection. हाँ, अब ठीक हो आप लोग? Can you all hear me on Facebook? Just say yes. I will answer all your questions. Okay. Here I have been asked a question on पनीर. पनीर का भी यही हाल है.
30 grams of paneer has 8 grams of fat. Okay, तो वो फैट जो होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमको all we have to understand is that this is a high fat dish. आप रोस्टेड खा लो या फिर आप उसको एक सब्जी के साथ खाओ, अमाउंट ऑफ पनीर मैटर्स. इसीलिए हम बैलेंस न्यूट्रिशन में हर प्रोग्राम के साथ आपको सिर्फ एंड सिर्फ ओनली एंड ओनली पोर्शन साइज के बारे में बताते हैं. और ऑफ कोर्स ये खाना पूरी तरह से अगर आप बाइफरकेट करो तो आपको कितना प्रोटीन मिलेगा. ऑलराइट, कुमारेश इज आस्किंग मी कैन वी ईट चपाती ड्यूरिंग डिनर. ऑफ कोर्स कुमार, आप चपाती ड्यूरिंग डिनर खा सकते हो, व्हाई नॉट. बट अगर आपने शाम में ही चीज सैंडविच खाई है, अगर आपने उसके 2 घंटे पहले सेव पूरी खाई है, उसके 1 घंटे पहले समोसा खाया है और लंच में भर भर के राइस खाया है, तो शायद आपको तकलीफ हो, बिकॉज यू आर ईटिंग टू मेनी कार्ब्स. ओके, आप है ना हमेशा सोचो, वेट लॉस चाहिए तो आपको एक बैलेंस लेना पड़ेगा जिसमें आप फाइबर ज्यादा डालो. तो आपकी आधी प्लेट सब्जी और सैलेड से भरी होनी चाहिए, 1 बोल दाल होना चाहिए और उससे रिलेटेड इतना सा चावल या 1 रोटी शुड बी गुड इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट. ओके, व्हेन आई ईट कॉलीफ्लावर माई वेट इंक्रीजेस. रिम्पी, ऐसा नहीं है कि आपका वेट इंक्रीज होता होगा. कॉलीफ्लावर से थोड़े लोगों को सल्फर की माइल्ड एलर्जी होती है जिसकी वजह से उनको ब्लोटिंग होती है. मे बी यू आर गेटिंग द ब्लोटिंग बिकॉज ऑफ कॉलीफ्लावर, एंड इफ यू आर ईटिंग कॉलीफ्लावर फ्राइड मंचूरियन तो आपका नहीं मेरा भी वेट बढ़ने लगेगा. राइट, ओके. समता इज आस्किंग मी हाउ डू वी काउंट आर इनटेक ऑफ कैलोरीज. समता, आपको कैलोरी का काउंट करना बहुत 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 मुश्किल काम है. इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कैलकुलेट कैलोरीज. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज लर्न द आर्ट ऑफ पोर्शन कंट्रोल. ठीक है ना, एक डाइटिशियन से ऑलवेज रियलाइज दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फूड एंड व्हाट फूड. तो फूड के ना फूड ग्रुप्स होते हैं. देयर इज कार्बोहाइड्रेट्स, देयर इज प्रोटीन रिच फूड, देयर आर दीज ग्रुप्स ऑफ फूड. जो सीरियल वाला लेयर होता है, फूड पिरामिड देखा होगा आपने, राइट. हम कहते हैं कि हमारा बेस होना चाहिए विद ग्रेन्स एंड सीरियल्स, जिसका ये मतलब होता है कि ग्रेन्स एंड सीरियल्स आपको आपकी डाइट में अच्छे से रखने हैं. The grains and cereals of today are very refined. इसीलिए हम कहते हैं कि बाजरा, किनोआ, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, मिलेट्स जो साउथ इंडिया में मिलते हैं, थोड़ा वो खाइए. ओके, उसके बाद का लेयर आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. उसके बाद का लेयर आता है दाल, मीट, पल्सेस, चिकन, और छोटू सा लेयर होता है फैट का. अगर आप इस प्रकार से खाओगे, और यू हैव टू रियलाइज दैट आपको कब बोल में खाना है, कब कटोरी में खाना है, 1 खानी है, 2 खानी है, ये आपको एक डाइटिशियन सिखाएगी. डोंट गेट इनटू द मेस ऑफ काउंटिंग योर कैलोरीज, बिकॉज एज आई सेड 1600 कैलोरी आपकी मैं भर सकती हूँ विथ कोक एंड विथ यू नो शुगर एंड साबुदाना, बट वो 1600 कैलोरीज न्यूट्रिशन भरी भी हो सकती है. Right. Anjana, hi. Anjana is asking, is it important to have dal, sabzi and salad? Can't we just have dal or sabzi and salad? दाल जो है is a very very high source of protein. तो दाल हो, चाहे फिर पल्स हो, छोले हो, वटाना हो, you know any kind of दाल और पल्स. Okay, that is a necessity. सैलड एंड सब्जी ये दोनों एक ही फूड ग्रुप है. ठीक है ना, आपको कच्चा खाना है कच्चा खाओ, पका हुआ खाना है पका हुआ खाओ. लेकिन अगर मैं फैट हूं और मुझे ज्यादा भूख लगती है तो मैं सैलड और सब्जी दोनों खाऊंगी, लेकिन प्रोटीन इज अ मस्ट. क्योंकि मैंने आपको अभी पिरामिड सिखाया ना, वेजिटेबल बेस है और उसके ऊपर एक लेयर है जहां आप क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट ओवर देयर, योर दाल्स, योर नॉन वेज एंड योर दही. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yeah, everyone is understanding? Yeah, or no? रुचि बाली इंटरमिटेंट फास्टिंग पे गए हैं और वो बोल रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट पॉसिबल. आई फील हंग्री आफ्टर 4 to 5 hours. रुचि, एक्चुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, वो ऐसे ही प्रैक्टिस नहीं कर सकते. यू जस्ट कांट प्रैक्टिस इट आउट ऑफ द ब्लू. ऑलराइट, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज आपका खाना बिफोर यू स्टार्ट द फास्ट. ओके, रात वाला, अगर सपोज आप ओवरनाइट फास्टिंग कर रहे हो तो आपको रात को थोड़ा खाना ऐसा खाना पड़ेगा जो आपको गो थ्रू करा सके. ठीक है ना, 4-5 घंटे में भूख अगर लग रही है तो जो खाना खाया था आपने बिफोर यू स्टार्टेड द फास्ट इज नॉट इनफ फॉर यू. दैट डजंट मीन आप एक गुलाब जामुन ऐड कर लो. आपको आपकी पूरी थाली देखनी पड़ेगी. यू हैव टू सी द होल मील एंड देन यू अंडरस्टैंड. ओके, सो मेक श्योर दैट यू आर करेक्टिंग व्हाट इट इज. कुछ ना कुछ तो है जो कम पड़ रहा है.
ओके, सो यू मीन दाल इज अ मस्ट अलॉन्ग विद सब्जी एंड सैलेड? जी हाँ अंजना, दाल क्यों? अगर आपको स्प्राउट्स पसंद है आप स्प्राउट्स खा लो, अगर आपको चना पसंद है या ऐसी कोई सूखी सब्जी पसंद है आप वो खा सकते हो, और आप कभी पनीर ले सकते हो, आप दही ले सकते हो, एनी ऑफ दैट, एनीथिंग। और अगर आप, जी यस अंजना, लेकिन एक काम करो ना, बॉइल्ड एग खा लो, दही खा लो, ठीक है ना। आई नो 2 डिशेज इन लॉकडाउन, कोई करेगा विदाउट मेड? नहीं रह सकता। आई नो आरती, शी सो फनी है ना। अंजना भी हमारी क्लाइंट ही है पहले वाली। ओके, रुचिता हाय, डज वन एवर क्रॉस अ प्लेटो? हाउ लो वन गोज ऑन कैलोरीज टू ब्रेक इट? रुचिता, प्लेटो जो है ना, मैंने 3 बार तोड़ा है इन माई ओन लाइफ। मुश्किल है, यस। आपकी बॉडी एक ऐसी बॉडी है जहां पे एक पर्टिकुलर वेट, सपोज 75 kgs, आप 95 से 75 आ गए। रुचिता इज ऑल्सो माई क्लाइंट, आई नो वॉट यू आस्किंग। अगर आप 95 से 75 kgs आ गए हो ना रुचिता, देन एज आई सेड इवन ऑन द कॉल लास्ट टाइम, दैट इट्स अ ब्लेसिंग, यू हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ। और दूसरी बात ये है कि कैलोरी डेफिसिट से अगर प्लेटो ब्रेक हो जाता ना, तो आज हर कोई डाइटिशियन होता। कैलोरी डेफिसिट से प्लेटो ब्रेक नहीं होते। प्लेटो ब्रेक सिर्फ एंड सिर्फ होते हैं अलग अलग फॉर्म्स एंड अलग अलग मेथड्स करने से। A major part of your plateau is also in your head. So you make sure that whenever you are dealing with a plateau or whenever you are dealing with something like that, you pay attention to what I'm saying अभी। हमेशा आप एक याद रखना। हाँ, नेदरलैंड से हो ना अंजना? आर यू फ्रॉम नेदरलैंड्स, एम्स्टरडैम? यूरोपियन कंट्री से ही हो, इतना तो मुझे पता है। राइट, शी इज टेलिंग मी, डू यू रिमेंबर मी? सो स्वीट ऑफ यू। ऑफ कोर्स आई रिमेंबर ऑल माई क्लाइंट्स, सिर्फ मुझे पूरा नाम याद रहना चाहिए, है ना। नाउ इट कम्स टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मुझे आप लोगों को ये बताना है कि आप लोग जब जाते हो, whenever you all are going and buying a weight loss program or whenever you all are joining a gym, नहीं अंजना, where are you from? Whenever you are joining a gym, whenever you are doing anything or any physics, Spain, I told you यूरोप से हो, है ना। अब थोड़ा आसपास, आजकल तो कहा हम लोग को तो मैप पे ही तो दिखता है, यहाँ स्पेन है और यहाँ थोड़ा सा नीचे ऊपर जाके एम्स्टरडैम आ गया। राइट, बरखा, नाउ लिसन टू व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना। हर एक वेट लॉस जर्नी में या हर एक डायबिटीज या थायराइड मैनेजमेंट की जर्नी में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। Okay, now this you will decide from today, okay, and wherever you decide, okay, कि आज मुझे अपने वेट लॉस पे काम करना है, आप ये जरूर याद रखोगे। okay, today suppose if you are at 80 kgs, all right, and this 80 kgs आपको अभी खटक रहा है, ये 80 kgs आपको लाना है नीचे। आप क्या करोगे? डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट जोन। मेरे जैसी को एक्सरसाइजेस बिल्कुल पसंद नहीं थे, बट नहीं, अब मैं चेंज हो रही हूँ। अब मैं घर में योगा भी करती हूँ और अब मैं वॉक भी करने जाऊंगी। बट आई लॉस 42 kgs ऑन माई कंफर्ट, एंड माई कंफर्ट वॉज ऑफकोर्स बिकॉज आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। मुझे एक ऐसा प्लान चाहिए था कि मैं थोड़ा प्रैक्टिकली वेट लॉस कर पाऊँ। चल गया, इट वर्कड, ओके। बट नाउ इज द टाइम व्हेन आई नीड टू ऐड द सेकेंड फेज ऑफ एक्सरसाइज। आप लोगों के केस में क्या होना चाहिए? आइडियली, सपोज फर्स्ट थिंग यू वांट टू डू इज यू डिसाइड दैट टुडे आई एम 80 kilos एंड आई वांट टू लूज वेट। एट बैलेंस न्यूट्रिशन हम आपको बोलेंगे कि आप अपने फर्स्ट फेज ऑफ वेट लॉस में हो, ठीक है ना। हर बॉडी को डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। डीकंस्ट्रक्ट मीन्स तोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। आपको सबसे पहले तो हम कैटाबॉलिज्म कराएंगे। व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? आप आते हो 80 kgs के, ज्योति हाय, आप आते हो 80 kgs के। अब आपको what we have to do is we have to break your weight. Most of them who are 80 kgs carry excess amount of fat. तो फेज 1 में कैटाबॉलिज्म हम करते हैं स्टार्ट, और हम आपका वेट बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं मैक्सिमम गिराने के लिए। दिस इज वेन यू सी द बेस्ट रिजल्ट, है ना। 10 दिन में, इनफैक्ट इन 20 days आई हैव अ ब्यूटिफुल प्रोफाइल ऑफ कोलेस्ट्रॉल टुडे इटसेल्फ, एंड वी वर ऑल सो हैप्पी कि उसका कोलेस्ट्रॉल से लेके पूरा लिपिड प्रोफाइल चेंज हो गया। ये डाइट जो होती है वो डाइट आपको करनी होती है विच इज एज क्लोज टू योर रेगुलर डाइट। सिर्फ थोड़ी चीजें यहाँ बदली, थोड़ी चीजें वहां बदली, ठीक है ना। सो फेज 1 ऑफ योर वेट लॉस इज ऑलवेज कैटाबॉलिज्म, जहां शरीर में हम ब्रेक करते हैं। मैक्सिमम ब्रेकिंग फैट की होती है, बट अगर इसकी वजह से आपका 400 to 500 ग्राम मसल लॉस होता है तो इट इज फाइन।
ओके जो डाइटिशियन या जो वर्कआउट प्रोग्राम ये बोलता है कि आपका मसल लॉस नहीं होगा तो वो गलत है। नेचुरल टेंडेंसी है कि बॉडी ब्रेकडाउन फेज में है तो सब ब्रेकडाउन होना ही है। Alright, now you came from 80 kgs to say 70 kgs in 3.5 months and for the next 20 days 70 से वजन उठ ही नहीं रहा, ना इंच लॉस हो रहा है। इनफैक्ट कभी कभी तो लगता है कि यार थोड़ा वेट गेन हो गया, थोड़ा इंच गेन हो गया, थोड़ा ब्लोटिंग लगने लगता है। दैट इज व्हेन वी आर नॉकिंग एट द डोर, ओके। तब हमको लगता है कि नहीं, अब बॉडी को किसी और चीज की जरूरत है। तब भी हम एक ऑप्शन देते हैं, either you start a little workout or 70 और आइडियल बॉडी वेट अगर 56 है तो हमें और 16 kgs का वेट लॉस चाहिए, राइट और रॉन्ग? ये 16 kgs का वेट लॉस अब रेगुलर डाइट से नहीं आएगा। दैट इज व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग डिफरेंट प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स जो है वो हर एक के लिए बहुत जरूरी है कि वो साइंटिफिकली समझे। सो एज एक्सपर्ट्स we identify whether this person should go into a diet which is called as plateau breaking concepts, या फिर उनको intermittent fasting कराना चाहिए, या फिर उनको कोई और फेज 2 प्रोग्राम कराना चाहिए जिससे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। बहुत सारे लोग जो फेज 1 के बाद ही आ जाते हैं फेज 2 में, जब उनका वेट होता है 60 किलोज एंड दे आर हैप्पी 60, 61, जो उनको लगता है कि नहीं अब मुझे वेट लॉस नहीं चाहिए, तो उनका फेज 2 होता है रिकंस्ट्रक्शन। जी हाँ, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है हमको, है ना। तो हम बॉडी को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके आपका मसल मास उस पे काम करते हैं, आपको प्रैक्टिकल डाइट्स देते हैं। सो ऑल ऑफ यू, इफ यू हैव जॉइंड अ वेट लॉस प्रोग्राम फॉर 2 months, ओके, एंड थिंक दैट मैं 2 महीने के बाद ब्रिलियंट, मेरी तो दुनिया सेट हो जाएगी, जी नहीं। आप अपना वेट लॉस पूरा करेंगे। आप फेज 1, फेज 2 और फेज 3 मेंटेनेंस करके ही एक वेट लॉस सस्टेन कर सकते हो। इसीलिए पता है, व्हेन आई गेट ऑन अ कॉल विद समवन हु इज वेरी वेरी एजिटेटेड एंड वांट्स टू जॉइन बैलेंस, तब उनका एक ही कहना होता है, मैम आई हैव डन सो मेनी डाइट्स बट ऑल द वेट कम्स बैक। ऑल द वेट कम्स बैक बिकॉज हमने बंद नहीं किया है। क्या आप कोई प्रोजेक्ट, क्या आप अपना घर कर रहे हो, सपोज इफ यू आर डूइंग इंटीरियर्स, क्या आप हॉल छोड़ दोगे? आपने पूरा घर कर दिया, लेकिन क्या आप हॉल का फर्नीचर छोड़ दोगे? नहीं ना, राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपको एक प्रोजेक्ट लेना है तो द प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट माई बॉडी, okay, and in that project my body what you must be doing is you must make sure that आप कैटाबॉलिज्म करो। उसके बाद आप अपना फेज 2 देखो कि वो आपको बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन या रिकंस्ट्रक्शन या रिकॉम्पोजिशन पे लेके जाता है, जहां हम अब मसल और बोन की बात करें आपके साथ, या फिर आपको एक एडवांस वेट लॉस चाहिए रहेगा बिकॉज आपका वेट लॉस थोड़ा ज्यादा है। आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न। कोई ऐसा बंदा है जो कभी जिंदगी में वापस केक नहीं खाएगा? सब खाएंगे, है ना। यू विल ऑलवेज वॉन्ट टू ईट दैट रेगुलर फूड बैक, और वो रेगुलर फूड बैक कैसे आएगा? एनी आंसर्स? आपको स्मार्टली सीखना होगा। इसीलिए वी से दैट वेट लॉस नेवर एवर लीव इट, ओके। अगर वो होता तो भाई मैं तो 2 महीने में नहीं ना साइज 0 हो जाती। We have to constantly keep working and that is why आपको एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। आपकी डायबिटीज भी, आपका थायराइड भी, एनीथिंग दैट यू थिंक इज हैव टू बी एड्रेस्ड, वो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। हमारी स्कूल को 12 साल लग जाते हैं अगर आजकल सीनियर केजी जूनियर केजी काउंट कर लो तो। एम आई राइट? इज दिस पार्ट क्लियर? एम आई मेकिंग सेंस? Do you guys want to talk about something else, or shall I continue about the phases in weight loss and calories? Can I talk about that? Continue? Empty calories हो गई, negative calories हो गई, है ना, types of calories भी हो गई, isn't it? Yes or no? So in types of calories, I want you to look at one more calorie, ठीक है ना, and that is calorie from इनविजिबल फूड्स, ओके, अंडरस्टूड। किसी को पता है इनविजिबल कैलोरीज क्या है? एनीवन नोज व्हाट आर इनविजिबल कैलोरीज? ज्योति सिंह, ऑल बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स आर टू गुड। ओ थैंक्स ज्योति। रुचिता, नेगेटिव कैलोरीज पता है ना आपको? A negative calorie is that calorie
जहां देर इज अ बोल ऑफ सैलेड, ओके, विच टू बर्न, अगर मैंने कैबेज और क्यूकम्बर सैलेड बनाया है और अगर वो सैलेड में 40 कैलोरीज है, बट द होल प्रोसेस ऑफ यू ईटिंग इट एंड डाइजेस्टिंग इट विल बर्न 50 कैलोरीज. तो आपने खाया 40, बर्न हुआ 50, -10, है ना. सेम वे हैपेंस विद ब्राउन राइस, विद फाइबर. आप खाते हो फाइबर, वो है ना डाइजेस्ट होते होते बहुत सारी कैलोरीज ले लेता है. दैट क्रिएट्स अ नेगेटिव कैलोरी डेफिसिट इन योर बॉडी, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होता है. Invisible calories, does anyone know? I want to understand if anyone knows, because otherwise फिर मैं बड़बड़ाऊं नहीं. अगर आपको नहीं पता तो बोलो प्लीज टेल अस, या फिर लिखो प्लीज टॉक. आई एम वेटिंग गाइस, कम ऑन टेल मी. ठीक है, लेट मी टेल यू व्हाट आर इनविजिबल कैलोरीज. ठीक है ना. Okay, let me keep a bowl of ice cream, ठीक है, over here, and let me keep, okay प्रिया, I'm telling you, एक बोल में आप आइसक्रीम ले लो. ऑल राइट, आइसक्रीम का बोल वेनिला आइसक्रीम, ठीक है. और यहाँ पे ऑन दी अदर साइड लेट्स टेक अ बोल ऑफ फ्राइड चिवड़ा. ओके, नाउ दिस कैलोरी व्हेन वी आर ईटिंग, ठीक है, आपने ये कैलोरी खा ली, ओके, आइसक्रीम की. मुझे आपको यही बताना है कि इसमें आपने रियलाइज तो किया नहीं, क्योंकि यू स्टार्टेड ईटिंग दिस आइसक्रीम व्हेन यू आर वाचिंग टीवी आफ्टर योर खाना एंड यू आर इन अ ब्लिसफुल स्टेट, और यू आर विद फ्रेंड्स और यू आर विद फैमिली. वो कभी काउंट ही नहीं होगी कि इसमें, ठीक है ना, ये वाली चीज में कितनी शुगर थी. डू यू नो 1 scoop ऑफ आइसक्रीम गिव्स यू 8 teaspoons ऑफ शुगर. या 8 spoons of sugar in that one small little ball. पता था? नहीं ना. That ice cream is made from cream. ठीक है ना. तो आपको पता है कितना सारा क्रीम आप खा रहे हो, which means आप कितना सारा फैट वाला कैलोरीज लोगे. This is called as invisible calorie. आप केचप लेते हो, लेकिन आप कभी सोचते हो कि वो केचप में कितनी सारी शुगर है? आप तो बस डाल देते हो, है ना. भैया एक्स्ट्रा मीठा डालना, एक्स्ट्रा बटर डालना. पाव भाजी का अंदर का बटर जो पकने में चला गया है ऑलरेडी, हैज एनीवन रियलाइज दैट? यू अंडरस्टैंड? दैट इज इनविजिबल कैलोरीज. सुबह सुबह खाने में ना, आई मीन चाय के साथ लेट्स से, हम हमेशा 2 या 3 बिस्किट प्रिफर करते हैं. क्या आपको पता है कि वो बिस्किट बेक करने के लिए ट्रांस फैट डाला गया है, विच इज दैट आर्टिफिशियल घी, यू नो. वो आटा गूंथते गूंथते फॉर द बिस्किट मैदे के साथ साथ बहुत सारा शुगर गया था. या सो दीज आर इनविजिबल कैलोरीज. आपके लिए तो आपकी प्लेट में एक बिस्किट थी, बस वो बिस्किट का बाइट लेते से पहले किसी ने सोचा कि इसमें फुल ऑफ फैट एंड शुगर वाली कैलोरीज है. ठीक है ना. तो अगर मैं आपको मैरी बिस्किट या कोई लो कैलोरी बिस्किट की कैलोरीज बताऊं कि वो इट इज ओनली 20 कैलोरीज इन अ बिस्किट, नो, बट दैट 20 कैलोरीज कहाँ, कौन सी कैलोरी है वो गंदे से शुगर और गंदे से फैट की कैलोरी है. तो भले ही वो 20 हो, 10 हो, चाहे 100 हो, वो अपना असर दिखाने ही वाली है. ओके, कैन यू नेम सम इनविजिबल कैलोरी फूड्स? पनीर खाते खाते कभी सोचा इट हैज 7 grams फैट? द रॉ पनीर सोचो कुक करते करते क्या हो जाएगा, है ना. आप मंगवा दे तो हो वेज कोल्हापुरी, बट वो वेज कोल्हापुरी की जो ग्रेवी है ना, उसमें जो कैश्यू पेस्ट, ओके, और उसमें जो दूसरा पेस्ट डालता है, यू नो द कैलोरीज दैट आर इन दैट, एंड दे आर ऑल्सो प्योर फैट कैलोरीज. कियारा इज लाफिंग, बट कियारा इजंट इट अ फैक्ट? हम लोग ब्रेड तो खा लेते हैं. हाँ, मेरे ब्रेड में बटर नहीं डालना, लेकिन वो ब्रेड का आटा जो बेक करते वक्त उसमें फैट गया है इतना सारा, उसका क्या है ना. व्हाट अबाउट योर पिकल्स? पिकल के ऊपर का ऑयल लेयर देखा है किसी ने? दीज आर ऑल इनविजिबल कैलोरीज. तो अब मुझे बताओ, मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपको क्या सिखाऊं? शुड आई टीच यू एम्प्टी कैलोरीज? शुड आई टीच यू मेटाबॉलिक रेट? शुड आई टीच यू यू नो नेगेटिव कैलोरीज? शुड आई टीच यू यू नो इनविजिबल कैलोरीज? या फिर मैं आपको मैथमेटिशियन बना के कैलोरीज काउंट करवाऊं? यस रुचिता, सैलड ड्रेसिंग आपके सैलड में सिर्फ लाइम, पेपर और थोड़ा सा नमक इफ यू कांट डाइजेस्ट. मैं तो बिना नमक के खाती हूँ, राइट.
यस, बरखा इज सेइंग लाइक नो चीज पिज्जा. बरखा नो, चीज उड़ा दी लेकिन पिज्जा का बेस भूलना नहीं. वो पिज्जा का जो बेस है ना, वो बेस बनाने के लिए भी काफी फैट यूज किया है. ओके, रुचिता, टी कॉफी नॉट एम्प्टी कैलोरीज, नॉट नेगेटिव कैलोरीज, दे आर प्रॉपर कैलोरीज. ठीक है ना. ओके, एक वीडियो डाला था, आई कैन नॉट डू विदाउट हैविंग टी, आई गेट अ हेडेक अदरवाइज. कहा, किसने बोला टी नहीं? यू हैव योर टी. या इन वेट लॉस टी इज नॉट समथिंग दैट कम्स इन द वे एट ऑल. आपको पता है, एक कप चाय, मोस्ट ऑफ यू डोंट लाइक टू मच शुगर इन योर टी. इफ यू लाइक ऑल्सो, ठीक है, 3 चम्मच नहीं करना. मोस्ट ऑफ यू लाइक दैट 1 चम्मच, है ना. दैट्स फाइन. वो 1 कप चाय अगर आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन देती है और अगर वो आपको मोटिवेट कर सकती है टू डू अ डाइट थ्रू आउट द डे, आई वुड से इट्स अ इजी बार्गेन. क्लाइंट को 1 कप चाय दे दो, है ना. अब क्लाइंट को आजकल, you know, Anjana, आप तो बड़ी simple हो. You're saying you can't get up without having tea, but now thanks to lockdown. But otherwise, we had clients who are addicted to coffees, and coffees with now new style, double cream, whipped cream, this sauce, that sauce, you know, honey syrups and syrups which were full of chocolate, syrups which were full of hazelnut and sugar. Just imagine, उससे ज़्यादा तो any day I would give you your chai, है ना. रुचिता इज आस्किंग कि उसको मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ा जानना है. आई थिंक आई कुड से समथिंग अबाउट मेटाबॉलिज्म. व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? यू ऑल नो मेटाबॉलिज्म इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली वीक व्हेन इट मीन्स दैट यू all are coming to a nutritionist. In fact, what I'll do is I am asking my team to put a link over here in the comments. That link will take you to a small little quiz, और वो quiz आपको बताएगा what is your ideal weight, what is your BMI, okay, what is your grade of obesity, and what is a score that we give you out of 100. ठीक है. So I will have the team put that up, but आप जरूर score लेना. All right. Anjana, no. Yeah. Many people say that you should not start your day with tea. Many people like me say please do not have biscuit. But ऐसा नहीं है. Someone's asked what about black coffee? Oh, Barkha, that is my favorite. मुझे बहुत अच्छी लगती है black coffee as it is. I love the what do you say? I love the smell. Kiara is saying, please tell me about negative deficit calorie once again. Kiara, what you have to do is you have to follow balanced nutrition, okay? And मैंने 3 posts डाले हैं पूरा लिख के since yesterday. Since yesterday morning, I think since Saturday evening. You should watch all the posts that I have put up. बहुत अच्छे से लिख के explain करा है हमने. All right. Yes, CV, as I have put it from my Instagram handle, which is Khyati Rupani wala handle. Please वो ले लो, ठीक है. Now what I am going to discuss is metabolism. Wait, before that let me see किसी का कोई question है क्या. ठीक है, done. मेटाबॉलिज्म की जब बात करते हैं, इट्स द मोस्ट स्केरी टॉपिक फॉर मी. मुझे खुद को मेटाबॉलिज्म से बहुत डर लगता है बिकॉज द फैक्ट दैट यू आर कम टू मी, ओके, और एनी न्यूट्रिशनिस्ट. मानसी इज एंजॉइंग माई डाइट अ लॉट, है ना. मानसी, नाउ एंजॉय द नेगेटिव कैलोरी पार्ट, एंजॉय द एम्प्टी कैलोरी पार्ट, एंड ऑल्सो मेटाबॉलिज्म का जो ज्ञान दे रही हूँ ना, वो भी सुन लो, ओके. So when it comes to negative calories, you are okay. When it comes to empty, okay. Invisible calories, okay. अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे. That is talking about metabolism. Metabolism किस चिड़िया का नाम है ना. Metabolism हर बंदे में होता है, okay. Metabolism is how many calories I am bursting or I am burning rather when I am sitting like this. Sitting doing nothing, zipped. मेरा ब्रीदिंग चल रहा है, डाइजेशन चल रहा है, क्योंकि अभी एप्पल और म्यूसले खा के आ रही हूँ, है ना. सो माई ब्रीदिंग, माई इंटरनल बॉडी मैकेनिज्म्स, ठीक है ना, जो चल रहे हैं, उनके लिए एक प्रॉपर कैलोरी बर्निंग होता है. योर बॉडी नीड्स अबाउट 1000 कैलोरीज टू जस्ट लिव. ब्रीदिंग, व्हाट यू से, डाइजेस्टिंग, योर लिवर टू डू इट्स जॉब, योर किडनी टू डू इट्स जॉब, उसे कहते हैं बेस मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना. सैड स्टोरी है. द वंस हु आर फैट हैव अ बैड मेटाबॉलिज्म. तो अगर मेरे ही जैसी देयर इज समवन एल्स हु इज अ लिटिल थिनर, हु हैज लेसर फैट, हु इज क्लोज टू हर आइडियल बॉडी वेट, she will burn around 1500 to 1600 calories when she is sitting like this, okay, and I will burn only 1000. ठीक है ना.
जब मैं 80 किलोज की थी आई वॉज बर्निंग ओनली 600 कैलोरीज. तो दैट इज द रीजन. मेटाबॉलिक रेट is completely totally depending on your existing weight. It also depends on the activity level of the day. ठीक है ना. अगर आप बाहर, अभी तो कोई मजदूर खैर इतने दिखते नहीं है, ओके, बट अगर कोई मजदूर है जो रोड बना रहा है या कोई बिल्डिंग में आप मजदूर देखो, उसकी मेटाबॉलिक रेट तो भैया इट्स टचिंग द स्काई. ओके, दैट इज व्हाट मेटाबॉलिक रेट इज. The rate at which you're burning calories on rest. मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना चाहिए. जी हाँ. मेटाबॉलिक रेट कितनी होनी चाहिए? एनीथिंग बिटवीन 1500 to 2000 कैलोरीज you should be burning per day just by doing nothing in life. मेटाबॉलिज्म बढ़ाए कैसे? मेटाबॉलिज्म तो गंदा है. मेटाबॉलिज्म बढ़ाए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेट लॉस. आर देयर एनी फूड्स दैट इंक्रीज मेटाबॉलिज्म? जी हाँ. Fiber will increase metabolism because fiber needs a lot of more effort to be digested. ठीक है ना. प्रोटीन खाने से मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा. अंजना, यू सेड यू आर अ वेजिटेरियन. ठीक है, अंडा और चिकन निकालो, दही खा लो, लो फैट वाला. ठीक है. सो प्रोटीन विल मेक श्योर. मेटाबॉलिज्म बूबू कैसे होगा? हाउ विल यू मेक श्योर योर मेटाबॉलिज्म बिकम्स वर्स? इट बिकम्स वर्स. 1, लॉन्ग सिटिंग आवर्स. 2, eating junk. 3, eating a lot of sugar. Okay, how do you calculate metabolism rate? Is it BMR? Yes, Madhu, it is BMR, and you will find many equations available on Google, as well as you can calculate it using our health score link, which is just there upstairs. Now upstairs nahi, up in the comments. ठीक है. Now let me see, what about green tea, ma'am? Green tea will also help increase metabolism. Please, लेकिन उसको आप honey से मत fill कर देना. Plain green tea with a little bit of lime will increase metabolism. Apple cider vinegar increases metabolism. That is the reason you guys are advised taking all that. Okay, eating a whole fruit will increase your metabolism. Standing up and sitting down with long hours of work also and moving around will increase your metabolism. Unfortunately, मैंने इतना बड़ा है आपके लिए since the last half an hour. No, it will not increase my metabolism. Sad है ना. Next time we should do a session when I'm jogging or something. ठीक है. Is there any other question that anyone has? Because I am coming live tomorrow and that live is with an NGO. So of course you guys are going to be there, right? Anjana is asking, can we eat avocados every day? Anjana, it's like asking me, can we eat kakdi every day? है ना. Avocados are very high in fat. जी हाँ. Okay, yes, they are high in fat. देखो भैया, healthy भी हो ना. Okay, बादाम healthy है. Does it mean आप बादाम की सब्जी बना के रोज खाओगे? Right. So it is always the amounts that matter. अगर आपका avocado in a day more than 2 teaspoons हो रहा है on an Indian diet, no, then you are doing a mistake. उस रात को make sure that you are not having any other source of fat, including your paneer or including a dish which is high on butter or ghee, because avocado does have good amount of fat. Okay. How else do you improve metabolism? Movement, I said. I gave you certain foods, and of course going on a proper diet where you start losing weight will help you improve your metabolism. Right. I think I have covered most of your questions. है ना? Yes. Anyone else has any questions? Yes. Love you. Aarti, hi. Wanted to say my mom, Usha Agarwal, is loving. Aarti, I read Usha auntie's mail. I am so happy. She's losing weight. She's motivated, and I love the way, her entire program is getting done. पता है, like, आपको पता है ना, जब मैं बोलती रहती हूँ कि क्लाइंट आता है ठीक है, लेकिन क्लाइंट की मम्मा या क्लाइंट के डैडी आ जाते हैं, so we are not we become too emotional, मम्मा डैडी किसी के आ गए, so I'm so happy. Say hi to Usha auntie and listen, उनको Instagram पे लेके आओ. Vikas is saying, Sonal is saying, but you would eat the whole avocado? Sonal, if my dinner, okay, is going to contain a salad and say a pasta, okay, and if I have made that pasta using some cheese, okay, तो मैं नहीं खाऊंगी. I have to ensure that कोई और फैट मेरे आसपास ना हो जब मैं एवोकेडो खाऊं. ओके, वेस्टर्न डाइट में
हमसे कम ग्रेन्स और हमसे कम ऑयल, कुकिंग ऑयल एंड ऑल इज लेसर यूज देन अस. So in a Western diet, avocado can come in, but in an Indian diet, having an avocado along with your paneer ki sabzi or along with your other non-veg, given the climate we are in and given our activity, it does not lead to weight loss. Eating not at night results. विकास जी, कभी भी आप ऐसी कोई चीज ना करो जो आप लाइफ लॉन्ग फॉलो ना कर पाओ. तो मेरे जैसी को तो रात को ही सबसे ज्यादा लाइक आई एम मोस्ट रिलैक्स्ड एट माई डिनर टाइम एंड आई इंजॉय ईटिंग दैट मील. तो मेरे जैसी तो रात को खाना नहीं खाना करे ही नहीं, राइट. एंड यस, रात को खा के फिर आप सीधा सुबह खाते हो, राइट. सो इवन इफ यू ईट लेस, ईट बट यू हैव टू ईट, ठीक है. अनलेस आप कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग करे हो तो भी आपका लास्ट मील बहुत जरूरी है. She's live here. Oh, I'm so happy. Usha aunty came to. I hope you are happy with our diet. ठीक है. Ruchita, nice session. Okay. Netra says, why are you so sweet? Netra, I am trying to become cruel. Actually, मेरे staff को या मेरी team को पूछ लो और ask some client who is not listening to me. I can be very cruel, darling. ठीक है ना? Perfect. I think we have answered every question that was put to us. Correct. I wish I could take a test of all of you, but until tomorrow, when I'm going to see you again with an NGO, this is does water intake affect weight loss and how to cope with water retention? Guys, please don't go. It's a beautiful question. Does water intake affect weight loss? 1000% water intake will affect your weight loss. You know what? अगर आप एक काम करो, ठीक है ना, यू हैव टू गिव मी वन आंसर हियर. इफ यू हैव टू चूज बिटवीन स्लीप एंड गोइंग टू द जिम और वर्किंग आउट, चूज स्लीप. ओके. इफ यू हैव टू चूज बिटवीन एनी अदर एक्टिविटी एंड स्लीप, you choose sleep. That is going to give you a good result. If you have to choose between making sure your water intake is okay और डू सम अदर एक्टिविटी जिसमें आपका इक्वल टाइम जाएगा, आपको वाटर इनटेक का ध्यान रखना ही है. ओके. just as important as your food is, your water intake is equally important because water is a free flowing fluid. जैसे ही आपका ब्लड है जो हर ऑर्गन और हर सेल में पास होता है, आपका वाटर यही करता है. इट इज गिविंग लाइफ. इट इज लाइक प्लांट्स को हम वाटर क्यों करते हैं? इंसान को दिन में 10 बार चाहिए होता है. आपका ऑर्गन क्लीन होता है, आपका ऑर्गन्स अच्छे से चलता है. योर ऑर्गन्स आर एट देयर पीक व्हेन दे आर डूइंग अ गुड जॉब लाइक दैट. What about when located at a cold place? What will be our water intake? When you are in a cold place, most of the time you are always inside a place which is, हमारे यहाँ AC है, वहाँ पे there are heaters. Okay, so every time you are indoors or you are in a mall, आप पूरा दिन तो बाहर रहोगे नहीं, right? So जब आप अंदर होते हो, आपका temperature of the room or the mall or any location you are in is the temperature of the human body. आपको भूख लगनी ही चाहिए और आपको प्यास लगनी ही चाहिए. Is it necessary to drink warm water the whole day? जी नहीं, आपको warm water पीने की कोई ज़रूरत नहीं है. Okay, how much water is needed for weight loss and how do you know how much is needed? Priya, n number of calculations have happened on this, but what I say is हमारा सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है. हम लोगों ने ना क्या किया है, we have given away our sense of thirst. Okay, because हम टीवी देखते हैं या हम जैसे अभी आप लाइव सुन रहे हो या आई एम डूइंग अ लाइव, राइट? My body will always give me thirst signals. Like right now also it is giving me a thirst signal, लेकिन मैं वो signal ignore कर रही हूँ, है ना? Right? I am ignoring it. Very soon मेरा जो system है वो कम काम करने लगेगा. Okay? My brain will not react to my thirst symptom or my signal of thirst. Then क्या होगा? Thirst will get confused as hunger. Most of the time this is a major reason of weight gain. ठीक है ना? तो पानी उतना पियो जब आपको get used to hearing the thirst mechanism. Okay, if you're not, try having 10 to 12 glasses of water in a day and then let's see what happens. But please understand, you have to give your brain some rest, है ना?
Is it okay to eat popcorn in weight loss and how often? Anjana, popcorn, air popped popcorn as a snack is something that I like. Buttered popcorn and Act 2 popcorns which are full of butter and salt will lead to weight gain. तो आप वो नहीं खाओ. She was also asking me, Priya was also asking me about bloating. Priya, when you bloat, okay, that is because आपकी body में पानी कम है और अदरवाइज आपकी बॉडी में एक ही प्रॉब्लम है, इट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ मच वाटर टू थ्रो, दैट इज वाई इट इज रिटेनिंग वाटर. आपको क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट हाई बैंड रबर्स. आपको सिर्फ एक चीज करनी है, आपको बहुत ज्यादा पानी पीना है. ओके, यू ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन टू मेक श्योर दैट द होल प्रपोर्शन ऑफ स्टोरिंग वाटर डजंट हैपन. और हाँ, जितना ज्यादा फैट उतना ज्यादा वाटर रिटेंशन. सो मेक श्योर यू आर नॉट गेटिंग इन टू दैट जोन एज वेल. I think, yes, how much water is needed, popcorn, all answered, yes. Netra, thank you so much. I'll take that as a compliment. ठीक है ना? All right. I think we've covered everything, guys. It was very nice talking to you today. Tomorrow you have to come and you have to make sure that you are listening to the beautiful live that we have. You can catch this one on Instagram, on IGTV. Make sure you like and follow this channel. Same way on Facebook. Make sure you like this page. Bye. Take care, guys.